Hello students. Today we will discuss second chapter forms of business organization, third topic. Yes, earlier in the last video we have discussed two topics. One is sole proprietorship, second joint Hindu family business. Now in this video we will discuss partnership. Now let me introduce the meaning of partnership. Partnership is an association of two or more persons who have agreed to share profits of business carried on by all or any of them acting for all. When more than two and more than two persons are ready to start a business, to do a business, that business become partnership business. इन दिस बिजनेस दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स. वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए पहले से एग्री हो जाते हैं एंड द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. या तो सारे उस बिजनेस को कैरी करते हैं या एक पर्सन बाकियों के बिहाफ पे सारी एक्टिविटीज करता है. लेट मी डिस्कस द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस पार्टनरशिप बिजनेस. एज बिजनेस एक्सपैंड, जब बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होता है, वन नीड्स मोर कैपिटल. उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है, बहुत सारे पर्सन्स चाहिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए. जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज क्या पढ़ा, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज. उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, उसके जो लिमिटेशंस हैं, ड्यू टू दोज लिमिटेशंस partnership business can be started. Here more persons can join, more than two persons can join, large amount can be invested by different people. In such a situation, people usually adopt partnership form of organization when two or more persons join hands to set up a business and share its profits and losses. They are said to be in partnership. Persons have entered into partnership with one another are individually called partners. वो सब आपस में partners होंगे और collectively they will become firm. Now let's discuss the features of partnership. Here are the points: formation, liability, risk bearing, decision making and control, continuity, mutual agency, and the last point is membership. Let's discuss all these points in detail. Here, the first point is formation. Partnership is the result of an agreement between two or more persons to do business. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टू पर्सन्स आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में शेयर करेंगे. व्हाट विल बी द क्राइटेरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स. दैट एग्रीमेंट बिकम्स रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स. The agreement between partners must be to share profits and losses. If some persons join hands for purpose of some charitable activity, that will not be considered as partnership. Right? Second point is liability. The partners of a firm have unlimited liability. Same as in case of sole proprietorship that we have discussed. Personal assets may be used for repaying debt in case the business assets are not sufficient to pay business debts. Jointly, all partners are responsible for the debts and they contribute in their profit sharing ratio. जो भी लॉसेस होंगे आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के लिए, अगर बिजनेस एसेट सफिशिएंट नहीं है तो उनके पर्सनल एसेट से वो उस लॉस को बेयर करेंगे. बट जो रेशो उन्होंने प्रॉफिट्स के लिए डिसाइड करी थी उसी रेशो में वो लॉस को भी बेयर करेंगे, ये लाइबिलिटी को भी उसमें पे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. नाउ यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, सेम. राइट. एसेट्स ऑफ फर्म अमाउंट्स टू 1 lakh but the firm's debt are 1,50,000. Now in this case 50,000 is still outstanding to pay outside. Right. तो वो जो 50,000 की अमाउंट है दोनों पार्टनर्स ए एंड बी लाइबल हैं इक्वली बेयर करने के लिए. 25,000 ईच पार्टनर विल bring from their personal property to pay firm's debt. Here the next point is risk bearing. The partners bear the risk involved in running a business as a team. पार्टनर सारे एक टीम की तरह उस बिजनेस में जो भी रिस्क आएगा उसको बेयर करने के लिए रेडी हैं. रिवॉर्ड कम्स इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट विच आर शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो. और जो भी प्रॉफिट्स अराइज होंगे एज अ रिवॉर्ड, ऑल पार्टनर्स विल शेयर इन डिसाइडेड रेशो, इन एग्रीड रेशो.
However, they also share losses in same ratio. In case अगर loss होता है किसी भी event में तो वो उसी ratio में bear करेंगे. Here the next point is decision making and control. Whatever the decisions are taken in this firm are generally taken with mutual consent. Mutual consent means consent of all partners. All activities of partnership firm are managed through joint efforts of all partners. Whatever the decisions, whatever the activities, control criteria, it will be according to the consent of all partners. Means partners are agreed with those decisions. Here the next point is continuity. Partnership is characterized by lack of continuity of business. इसमें भी continuity नहीं रहती because अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है कोई पार्टनर या फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाता है. इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट दैट वी हैव डिस्कस इन सोल प्रोप्राइटरशिप ना. इनसेन हो जाता है यानी कि मेंटली अपसेट हो जाता है तो पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती है. पार्टनर कैन ब्रिंग एन एंड टू बिजनेस. बिजनेस वहाँ पे बंद हो जाता है. बट इन केस हाउएवर रिमेनिंग पार्टनर्स में इफ़ दे सो डिज़ायर, अगर वो चाहते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करना तो एक नया अग्रीमेंट बना के उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं. हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी. The basis of partnership concerns may be carried on by all partners or any of them acting for all. The above statement has two implications. First, every partner is entitled to participate in conduct of affairs of its business. जो भी एक्टिविटीज़ होंगी सारे पार्टनर्स एंटाइटल हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. सेकेंड थिंग, देयर एग्जिस्ट अ म्यूचुअल एजेंसी relationship between all partners. Each partner carrying on business is principal. जो भी पार्टनर बिजनेस को कैरी कर रहा है वो प्रिंसिपल की तरह होता है और बाकी के सारे पार्टनर्स एजेंट की तरह काम करते हैं. और ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स. जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बाकी सबके लिए भी बाइंड है कि सबको वही सेम परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड इज़ ऑल्सो बाउंड बाय एक्ट्स फॉर अदर पार्टनर्स. पर यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, किसी पॉइंट पे बाकी पार्टनर्स ने जो बोला है उसको भी वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर. ही इज़ बाउंड बाय एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स विद रिगार्ड टू बिजनेस ऑफ फर्म. फर्म का जो बिजनेस है एक दूसरे के लिए सबको एग्री करना पड़ेगा. सो रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इम्पॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट देयर वुड नो partnership if mutual agency is not present. And the last point here is membership. To start a business, minimum 2 members are required, but maximum are subject to 100. Earlier the limit was 50, now it has been extended to 100 and prescribed to government restrictions. Now we will discuss the merits of partnership. Here the points are ease of formation and closure, balanced decision making, more funds, sharing of risk, and secrecy. Let's discuss these all points in detail. Here the first point is partnership firm can be formed easily with an agreement between 2 or more persons to carry some lawful business. Registration इस पे इतनी ज़्यादा कंपल्सरी नहीं होती बट अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं बट अदरवाइज विदाउट रजिस्ट्रेशन बिजनेस कैन बी ईजिली स्टार्टेड और फॉर इसका क्लोजर भी बहुत ईजी है. Next point is balanced decision making. As different partners having different expertise in different areas of function. अब इसमें बहुत सारे पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर किसी अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट होगा. बट सोल प्रोप्राइटर में यही डिसएडवांटेज था कि वो अकेला पर्सन था. दैट पर्सन कैन नॉट बी एक्सेल इन ऑल एरियाज इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स अलग अलग फील्ड से होंगे, वो अलग अलग एरियाज में एक्सपर्ट होंगे तो वो डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं. एज अ रिजल्ट डिसीजन बहुत बैलेंस्ड होंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोर फंड्स. सेम ये पॉइंट भी अगर हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये डिसएडवांटेज था कि उसमें एक ही पर्सन इतने ज़्यादा फंड्स नहीं रेज कर सकता था. तो यहाँ पे ये एडवांटेज हो गया. पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे पार्टनर्स हैं, more than 2 partners हैं. This makes it possible to raise larger amount of funds as compared to sole proprietorship. And additional operations can be done whenever needed. Here the next point is sharing of risk. Risk involved in running a partnership firm are shared by all the partners. This reduces anxiety, burden and stress on individual partners because whatever the risk arise will be distributed in all partners. Secrecy.
A partnership firm is not legally required to publish its accounts and submits its reports. Hence, that firm can also maintain secrecy, can keep its information confidential. Now, let's discuss limitations of partnership firm. Here the points are unlimited liability, limited resources, possibility of conflicts, lack of continuity. Let's discuss these points in detail. First point is unlimited liability. Partners of firm have unlimited liability, as we have discussed in sole proprietorship. Liability of partner is both joint and several, which may be proved to be a drawback for those partners who have great personal wealth. Next limitation is limited resources. There is restriction on number of partners. Now अब इस पॉइंट को आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसको कंपेयर किया गया जॉइंट स्टॉक कंपनी में. जॉइंट स्टॉक कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं. तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक का कंपेयर करें तो पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती. नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है. Hence, contribution in terms of capital is not sufficient to support large-scale business operations. As a result, partnership firms face the problem in expansion beyond a certain size. एक लिमिट से ज़्यादा हम बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते. तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. यस, अगर हम पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स को एक दूसरे के डिसीजंस के ऊपर एग्री करना पड़ता है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके डिसीजंस के लिए सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे. हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होगा. तो जब ओपिनियंस में डिफरेंस आ जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे डिस्प्यूट अराइज होता ही है. तो जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो पार्टनरशिप वहीं पे डिसॉल्व होने पे आ जाती है. पार्टनरशिप को एंड करना पड़ता है, अपना पार्टनरशिप बंद हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. पार्टनरशिप कम्स टू एंड विद डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर. अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है या उसकी अचानक डेथ हो जाती है तो वहीं पे पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है. तो इसलिए पार्टनरशिप की भी लाइफ ज़्यादा नहीं होती. लेकिन अगर पार्टनर्स अग्री करते हैं, इफ़ दे एग्री, देन दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय with the help of a new fresh agreement and then can continue the same business. Now let's discuss types of different partners. Here different partners are active partner, sleeping partner, secret partner, nominal partner, and the last is partner by estoppel. Let me clear you the meaning. Here different criteria has been used to explain the meaning of these different partners. First one is meaning. Active partner के केस में वो पार्टनर सारे डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस के ऑपरेशंस में, बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करता है, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर करता है और इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. सेकंड है स्लीपिंग पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर सिर्फ अमाउंट इन्वेस्ट करता है बट वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करता. स्लीपिंग पार्टनर विल नॉट बी एवरीवेयर प्रेजेंट, will not take participation in decision making, right? He will invest amount, he will share profits. Amount भी invest करेगा, profits भी share करेगा, but will not participate in decision making. अब अगर हम बात करें सीक्रेट पार्टनर की, सीक्रेट पार्टनर का सिर्फ एक ही डिफरेंस है बाकियों से कंपैरेटिवली. दैट पार्टनर इज नॉट नोन टू जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को नहीं पता कि वो हमारे साथ पार्टनर है. वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करता है, अमाउंट भी इन्वेस्ट करता है, बट ही इज़ नॉट नोन टू जनरल पब्लिक दैट ही इज़ पार्टनर इन आवर फर्म. नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर. Nominal partner is one who allows the use of his or her own name by the firm. He neither contribute capital, nor he takes part in decision making, nor he shares profits and losses. In simple words, जनरल पब्लिक के लिए वो हमारा पार्टनर है, पर लेकिन ना तो उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, ना ही वो प्रॉफिट लॉस के लिए शेयर कर रहा है, ना ही वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. हम सिर्फ उसका नेम पार्टनरशिप में यूज़ कर रहे हैं, दैट ही इज़ पार्टनर. जनरल पब्लिक के पब्लिक फील्स दैट ही इज़ आवर पार्टनर, बट in reality that person is not our partner, right? You can see the whole details in tabular form in Subhash De book attached with this video.
right? The last point here is partner by estoppel. A person is considered a partner by estoppel if through his own initiative, conduct or behavior gives an impression to others. उसका बिहेवियर इस तरह से है कि वो लोगों को शो कर रहा है कि वो हमारा पार्टनर है, पर सेम वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा और ना ही वो प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा, और इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है बिकॉज उसके बिहेवियर से इस तरह से था कि वो लोगों को लग रहा है कि वो हमारा पार्टनर है. सो मेनी पीपल हैव डन ट्रांजेक्शन विद अस ऑन द बेसिस ऑफ हिम. तो इसलिए वो लाइबिलिटी पे करेगा, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड रहती है. Now the next topic is types of partnership. Types of partnership is divided into two parts on the basis of duration, on the basis of liability. Now first we will discuss on the basis of duration, partnership at will, and second is particular partnership. Partnership at will में क्या होगा? It can continue as long as partners want. जब तक पार्टनर्स काम करना चाहते हैं तो वो इकट्ठे मिलके कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप को विड्रॉ करना चाहता है तो वो एक नोटिस देके पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है. लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के बाद वो पार्टनरशिप उसके बाद डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाती है. एक बाय accomplishment of a certain project, like for example construction of building or any kind of activity for a particular period of time, for 6 months, for 1 year, etc. तो उसके बाद साथ ही वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट हमारा बेसिस है लाइबिलिटी के बेसिस पे. लाइबिलिटी के बेसिस पे इसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज करा है, जर्नल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. जर्नल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, राइट? Partners can enjoy right to participate in management of firm and their acts are binding on each other as well as on other firms. सिंपल पार्टिसिपेट सारे पार्टनर्स करेंगे और लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड होगी. रजिस्ट्रेशन भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल रहता है. और पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है तब तक जब तक कोई पार्टनर सारे एग्री कर रहे हैं. अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या रिटायर हो जाता है या कोई पार्टनर विड्रॉ करना चाहता है तो उसके बाद पार्टनरशिप बंद हो जाती है. लिमिटेड पार्टनरशिप में और जनरल पार्टनरशिप में एक ही पॉइंट का डिफरेंस है. लिमिटेड पार्टनरशिप में वो पहले ही डिक्लेयर कर देते कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी. जितना अमाउंट हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पार्टनर्स आर लाइबल अप टू ओनली दैट अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस. तो नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या है? व्हेन बिफोर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप they form an agreement. That agreement may be written or oral, right? If they do that agreement, these are the contents to form partnership. पार्टनरशिप डीड में फर्म का क्या नेम होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, सब पार्टनर्स के नेम्स, उनके एड्रेस, वो कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, अगर कोई नया पार्टनर बीच में एडमिट होना चाहता है या कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है या अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या रूल्स फॉलो होंगे. नाउ आफ्टर दिस आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स टू रीड ऑल द केस स्टडी फ्रॉम सुभाष दे बुक attached along with these videos. Thank you.